ممبر پر تشریف فرما علماء ذوی الاحترام وداعیان اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد سیدنا و شفیعنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها ونور الابصار وضیائها وعافیة الابدان وشفائها وقوة الارواح وغذائها وعلى آلہ وصحابہ دائما ابدا کثیرا کثیرا۔ عزیزان گرامی وقار، دارالعلوم غوثیہ ضیاء الاسلام کا یہ عظیم الشان سالانہ اجلاس ہے، جس میں یہاں سے فارغ ہونے والے حفاظ کی دستار بندی کی جاتی ہے۔ آج کے اس اسٹیج پر بہت سارے علماء حفاظ قرہ موجود ہیں، اور ہر کوئی اپنے اپنے علاقے کا، اپنے جگہ کا خطیب ہے۔ گویا کہ ہر ایک کی تمنا یہ ہے کہ ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں، ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے۔ غالب نے لکھا تھا، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ اور ہم ہیں مشتاق اور وہ ہے بیزار، ہم ہیں مشتاق اور وہ ہے بیزار، الہی یہ ماجرا کیا ہے۔ آج علماء کی جماعت تو شوق سے بھری ہوئی ہے اپنے لوگوں اور اپنی قوم کی اصلاح کے لیے، مگر قوم کے افراد میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو علماء سے بیزار بھی ہیں اور لوگوں کو بیزار بھی کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ تو اب وہی کہا جائے گا کہ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ اس دوا کے لیے آپ کو علم حاصل کرنا ہوگا۔ علم کے بغیر انسان کبھی بھی صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا۔ چونکہ یہ جلسہ دستار بندی کا ہے اور علم ہی کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو میں کروں گا، مجھے امید بھی نہیں تھی۔ یہ ہمارے مشفق و مہربان محب گرامی قدر حضرت مولانا جمال احمد قادری صاحب قبلہ کا اشارہ ہوا، اور ہمارے نقیب صاحب نے پورے انصاف سے کام لیتے ہوئے مجھ کو آپ کے حوالے کر دیا۔ بہرحال اللہ کے رسول کا ارشاد ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، علم حاصل کرنا فرض ہے۔ علم حاصل کرنا فرض ہے۔ It is duty for every person of Muslim to gain education۔ علم حاصل کرنا ہر ایک پر فرض ہے۔ یہ کیوں فرض قرار دیا گیا؟ وجہ یہی ہے کہ ہر فساد کا علاج علم ہے، ہر فتنے کے خاتمے کا ذریعہ علم ہے۔ قوم میں ناسمجھی، انتشار، افتراق، کسی سے عقیدت کیسے رکھنی چاہیے اور کہاں تک رکھنی چاہیے، اس کا طریقہ بھی سکھانے والا علم ہے۔ کس سے محبت کس طریقے سے کرنا ہے، نفرت کس طریقے سے کرنا ہے،
अगर वो हमें तरीका सीखना होगा तो हदीस करीमा रहनुमाई करेगी। अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह, मोहब्बत भी करनी है तो अल्लाह के लिए करनी है, नफरत भी करनी है तो अल्लाह के लिए करनी है। गोया कि मोहब्बत और नफरत की हदें कायम कर दी गई है। ऐ मेरे बंदो, अगर मोहब्बत करनी है तो मेरे मुस्तफ़ा से तरीका सीख लो कि मोहब्बत किस अंदाज में की जाती है। अगर नफरत करनी है तो वो तरीका भी सीख लो कि नफरत किस अंदाज में की जाती है। तेरा अगर कोई जाती दुश्मनी किसी से है तो ऐसा ना हो कि उस पर तू कुफ्र और शिर्क का इल्जाम लगा करके दुनिया में ढिंढोरा पीट करके बदनाम कर दे। जाती दुश्मनी तुझसे है, इस्लाम से दुश्मनी नहीं है। मेरे नबी के जमाने में बहुत सारे लोग रहा करते थे नबी से जानी दुश्मनी रखने वाले, मगर मेरे नबी ने सब पर नजरे शफकत फरमाई, सबके साथ आपने हुस्ने सुलूक किया। बड़े बड़े दुश्मन थे और बड़े बड़े इस्लाम और नबी के बदखाह थे, मगर फिर भी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुस्ने अमल, हुस्ने किरदार ऐसा था कि जो लोग नबी को गालियां देते थे वही नबी का कलमा पढ़ते नजर आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक, सुभान अल्लाह। इल्म ये सबसे जरूरी चीज है। आज वो लोग जो इल्म से कोसों दूर हैं वो उलमा को आते हैं सिखाने के लिए पंजतन से मोहब्बत कैसे की जाती है। हक है, हक है। इमाम हुसैन से मोहब्बत, हजरत फातिमा ज़हरा से मोहब्बत, मौलाए कायनात से मोहब्बत सीखा हमसे है और फिर हम ही पर म्याऊं करने लगा है। अफसोस की बात है कि नहीं है? सही, बिल्कुल। अरे बात अफसोस की है, बात की नहीं। बताएं जरा कि जो माँ बाप बच्चे को बोलना सिखाए और वो जबान माँ बाप के खिलाफ चलने लगे तो वो माँ बाप कभी भी जन्नत में जाने के लिए दुआएं नहीं कर सकते हैं। इसलिए याद रखो, जो कौम के रहनुमा और सरदार होते हैं, जो आलिम होते हैं, उनकी इत्तबा ही में भलाई है। वरना मेरे अजीज जानते हो, औलाद की कामयाबी माँ बाप की दुआओं में है। माँ बाप अगर बद्दुआ कर दें तो हदीस करीमा में है कि 3 लोग ऐसे हैं जिनकी दुआएं कभी रद्द नहीं की जाती। एक तो माँ बाप की दुआ औलाद के हक में, और दूसरे ये कि मजलूम की दुआ या बद्दुआ जो करता हो, जिस पर जुल्म हो रहा हो और वो जालिम के लिए दुआ कर दे, तबाह बर्बाद रहता है। मुसाफिर की दुआ भी रद्द नहीं की जाती। अब जरा बताएं कि अगर माँ बाप बद्दुआ कर दे तो औलाद कभी भी कामयाब नहीं हो सकती है। एक इंसान ऐसा था जो अपनी माँ को गालियां देता था। माँ बड़ी मोहब्बत करने वाली, लड़का बड़ा बिगड़ा हुआ हो गया, बाप का इंतकाल हो गया। बिगड़ा हुआ लड़का शराब पी करके आता। आला हज़रत फ़ज़ल बरेली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये फ़तावा रज़िया में लिखा है, बयान करते हैं कि एक साहब गुजरे, अल्लाह के नेक बंदे, एक कब्रिस्तान के पास से, आबादी के पास से, कब्रिस्तान भी वहीं पर था। क्या देखा कि ये कब्र फटी और उसमें से ये गधे का सर बाहर निकला और गधे की 3 आवाजें लगा करके फिर अंदर चला गया, कब्र बंद हो गई। तो इन्होंने एक बूढ़ी खातून की पूछा, बीवी बताओ ये मामला क्या है? ये अजीब चीज मैंने देखी, कब्र से एक सर गधे का निकला, आवाज निकली, फिर कब्र बंद हो गई। कहा ये जिसकी कब्र है एक नौजवान था, इसकी माँ सिर्फ थी, लड़के से बड़ी मोहब्बत, रात में ये देर से आता, दोस्तों के साथ घूमता, दोस्तियों में इधर उधर मस्त रहता, बुरे कामों में मुलव्विस हो गया। शराब पी करके शाम को आता, माँ खाना पका करके बैठ के इंतज़ार करती होती, मेरा लफ्ते जिगर आएगा, उसे खाना खिलाऊंगी तब सुकून मिलेगा। वो बैठी होती थी और जब ये दरवाजे से अंदर आता वो पूछती, आ गया मेरा लाल? शराब के नशे में धूत होता, माँ को उल्टी सीधी बातें बोलता और कहता, क्या गधे की तरह चिल्लाती हो? एक दिन ऐसा हुआ कि वो आया शराब के नशे में
اور اسی حال میں تھا. ماں سے ایسے ہی گفتگو ہوئی اور کچھ دیر کے بعد میں اس کا انتقال ہو گیا. توجہ ہے, ماں نے کچھ کہا نہیں مگر دل تو اس کا کچھ نہ کچھ ضرور بولتا رہا ہوگا. ہر ماں کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میرا بیٹا کامیاب ہو. اب بتایا کہ لڑکے کا انتقال ہو گیا. یہ لڑکا جب ماں کے پاس آتا اور ماں کچھ نصیحت کرتی تو ایک جملہ بولتا تھا کہ میری ماں کیا گدھے کی طرح چیختی رہتی ہوں. آج بھی کوئی نوجوانوں کی بولیاں ہے, آئی ایم فری, میں تو آزاد ہوں, میں ایک آزاد فضا میں سانس لینا چاہتا ہوں. اب ماں باپ کو وہ دشمن سمجھنے لگتا ہے علم نہ ہونے کی بنیاد پر. دوستوں کو سمجھتا ہے کہ بڑے خیر خواہ ہیں, بڑے اچھے ہیں, یہ تو ناچ میں بھی لے کر کے چلے جاتے ہیں, ڈانس پارٹیوں بھی لے کر چلے جاتے ہیں, اور نہ جانے کہاں کہاں ہوٹلوں میں بھی گھما لاتے ہیں. مگر یہ ماں باپ ہے جیسے دروازے پہنچو ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں. ان سے بڑا دشمن تو کوئی نہیں ہوگا. بیٹا یہ سمجھ لیتا کہ نہیں سمجھتا؟ دوستوں کو سمجھتا ہے کہ ہمارے بھلا چاہنے والے, حالانکہ حقیقت میں وہ برباد کرنے والے ہوتے ہیں. مگر ماں باپ یہ تو ڈانٹ میں بھی پیار لے کر کے آتے ہیں. یاد رکھو, ہمیشہ یہ مت سمجھنا کہ مسکرا کر کے مل لینا ہی پیار ہوتا ہے. نفرت میں بھی کبھی پیار چھپا ہوتا ہے. ڈانٹ میں بھی تیری اصلاح اگر مقصود ہو تو وہ بھی پیار ہے. اگر کوئی یہ سمجھے کہ مارنا یہ ظلم ہے تو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے بارے میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا ہے کہ بیویوں کو نصیحت کرو, اور جب نہ مانے تو وَضْرِبُوهُنَّ, تو انہیں مار بھی سکتے ہو. ذرا سوچو, قرآن میں اللہ کو رحمان اور رحیم کہا گیا ہے, جو سارے رحم کرنے والوں سے بڑھ کر کے رحم کرنے والا ہے. وہ بھی شوہروں کو حکم دیتا ہے اگر بیویاں بات نہ مانتی ہو تو مار دو. وہ کہ مارنا یہاں پر ظلم نہیں ہے بلکہ انصاف ہے. بے شک, بے شک. ماں باپ اگر ڈانٹ دیتے ہیں تو یہ ظلم نہیں ہے, یہ انصاف ہے, یہ پیار ہے, یہ محبت ہے. بتانے نے بتایا کہ یہ لڑکا اپنی ماں کو بولتا تھا گدھے کی طرح کیا چیختی ہو. اللہ نے دنیا والوں کے لیے عبرت بنا دیا. جس دن سے انتقال ہو کر کے دفن کیا گیا ہے, قبر پھٹتی ہے اور شام کے وقت میں وہ لڑکا سر نکال کر کے باہر 3 مرتبہ آواز نکالتا ہے گدھے کی, اے دنیا والوں دیکھ لو. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. حضرت علامہ مولانا مفتی فرقان رضا صاحب قبلہ منظری. نعرہ تکبیر, دارالعلوم غوثیہ, جشن دفتار بندی. درود پڑھ لیجئے. صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم, صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں عرض کر رہا تھا میرے پیارے جی, دنیا والوں کو نشان عبرت بنا دیا. اے دنیا والے دیکھو, زندگی میں جو بیٹا ماں کو صرف یہ بولتا تھا کہ کیا گدھے کی طرح چیختی چلاتی ہو, اللہ نے اسے گدھے کی شکل میں تبدیل کر دیا. قبر سے نکلتا ہے روزانہ اور آوازیں بھی لگاتا ہے. یہ عذاب اس پر مسلط کر دیا گیا ہے. قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا اور اس کے بعد پھر کیا نہ جانے کیا ہونے والا ہے. اس لیے اے میرے پیارے سنو, اگر دنیا میں چاہتے ہو کہ تیری دنیا سنورے اور آخرت سے اس دنیا کا رشتہ ایسا جڑے کہ دنیا میں بھی کامیاب رہے آخرت میں بھی کامیاب رہے, تو علم حاصل کرو. بغیر علم کے کامیاب نہیں ہو سکتے. جہالت دور کرو, ناخواندگی ختم کرو. اگر چاہتے ہو کہ قوم ترقی کرے, چاہتے ہو کہ قوم کا نام لیا جائے, چاہتے ہو کہ دنیا سے فتنہ فساد ختم ہو, چاہتے ہو کہ معاشرے سے جھگڑا ختم ہو, چاہتے ہو کہ معاشرے میں جو بربادیاں ہیں وہ سب ختم ہو, چاہتے ہو جو معاشرے میں جبری جہیز کی رسمیں وہ ختم ہو جائے, چاہتے ہو کہ غریبوں کی بچیاں یوں ہی درگور نہ ہو جائیں, چاہتے ہو کہ غریبوں کی بچیاں جلائی نہ جائیں, چاہتے ہو کہ اس معاشرے سے ہمیشہ کے لیے ہر طریقے کا ظلم ختم ہو جائے, تو اپنے معاشرے کو تعلیم یافتہ بنانا ہوگا, انہیں پڑھانا ہوگا, انہیں لکھانا ہوگا. اور یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ دنیا کی تعلیم سے اس طریقے سے کامیاب ہو جائیں گے. دنیا کی تعلیم تو آپ کو بہت کچھ سکھا سکتی ہے, مگر ظلم مٹانے کا ذریعہ جو کچھ ہے وہ تعلیم مصطفیٰ. سبحان اللہ, بے شک, حق ہے, حق ہے. سبحان اللہ. آج تو لکھا ہوتا ہے ماں گھس لینا, ماں گھس دینا, لکھا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ماں بھرشٹاری پڑی ہونا, اوپر سے لکھا ہوتا ہے ٹیبل کے اوپر, اور نیچے سے ماتھی ماتھی چنگا ہوتا ہے, نیچے نیچے نہیں ہوتا ہے. اس لیے میرے عزیز
तालीमात मुस्तफ़ा के बगैर इंसान ना तो कभी सही रास्ते पर चल सकता है, ना किसी से सच्ची मोहब्बत कर सकता है। एक मकाम पर सहाबा ने नबी से अर्ज किया था, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, मैं चाहता हूँ, मेरी तबीयत ये चाहती है, मैंने आपसे बढ़कर के किसी को न पाया है, किसी को न देखा है, इसलिए दिल में तमन्ना ही है कि आपको सजदा कर लूँ। तो मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे साहबा, ये तेरी मोहब्बत है, तेरी तबीयत का तकाजा ये है, मगर शरीयत का तकाजा क्या है वो सुन ले। लौ कुन्तु आमुरु रजुलन अयस्जुदा लिरजुलिन लअमरतु निसा अयस्जुदना लिअज़वाजिहिन्ना। दुनिया में अगर किसी इंसान को मैं हुक्म देता कि किसी इंसान को सजदा कर ले, तो औरतों को हुक्म देता कि अपने शौहरों को सजदा करे। मगर याद रखो, दुनिया में इंसान को इंसान के लिए सजदा करना जायज नहीं है, इसलिए तू सिर्फ अगर सजदा करना चाहता है तो खुदा को सजदा कर, मोहब्बत मुझसे कर, इबादत खुदा की कर। कामयाबी चाहता है तो शरीयत मुस्तफा पर अमल कर ले। बहुत से पीर आज घूमते हैं जो मुरीदों से सजदा करवाते हैं, उलमा जब बयान करते हैं तो कहते हैं कि उलमा का मामला कुछ और है, शरीयत कुछ और है, तरीकत कुछ और है। मेरे नबी से बढ़कर के शरीयत कौन जानता होगा? आजकल कई शरीयत सिखाने वाले क्या शरीयत सिखाएं? नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मौलाना रफीक खन्नापुरी साहब किबला। नारे तकबीर, जश्न दफ्तार बंदी, दारुल उलूम गौसिया, हज़रत अल्लामा मौलाना मंजरी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दफ्तार बंदी, दारुल उलूम गौसिया, उलमाए अहले सुन्नत। तशरीफ रखिए आप। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस इदारे का नाम ज़ियाउल इस्लाम है जी। क्या नाम है? क्या नाम है? ज़ियाउल इस्लाम। आप भी तो ज़िया ही है। तवज्जो है, ज़ियाउल इस्लाम, इस्लाम की रोशनी, इस्लाम की रोशनी। जहाँ रोशनी होगी वहाँ इंसान भटक नहीं सकता है। और इल्म के बारे में भी कहा गया, एजुकेशन इज अ लाइट। इल्म एक रोशनी है, और कैसी रोशनी कि इंसान जब इल्म हासिल करता है तो वो खुद भी रोशन होता है और दूसरों को भी रोशन करता है। और रोशनी ऐसी कि गौसे आदम फरमाते हैं, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबन वनिलतु सादा मिन मौलल मवाली। और फरमाते हैं कि इसकी बरकत ये है कि नजर तो इला बिलादिल्लाह जमान का खरदिलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। इल्म की बरकत ये होती है, इल्म की रोशनी ये होती है कि इंसान जब इल्म हासिल करता है खुद भी रोशन होता है और समाज को भी रोशन करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले। माशाअल्लाह, बहुत से अजीम और अबकरी हजरात यहाँ पर मौजूद हैं। अब इनकी मौजूदगी में मैं गुफ्तगू क्या करूँ? मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? समझ में आ रही है? पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, ये मिशन आप बिल्कुल चला दीजिए ताकि गुमराहों से बच जाए और गुमराहियत जो फैल रही है उससे बच जाए। बात समझ नहीं तुम्हारे? मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत से लोग आज सिर्फ झंडा लेकर के सोचते हैं कि हम ही कामयाब हैं। मेरे नबी ने झंडा तो लगाया है, मगर झंडा के साथ साथ अपने सहाबा को सबसे पहले तालीम याफ्ता किया है। मस्जिद नबी में जो लोग गए हैं, असहाबे सुफ़ा का चबूतरा वहाँ पर बना हुआ है। ये किस लिए बनाया गया था कि सुनो, नमाज पढ़ना है तो पहले तरीका चबूतरे में बैठ करके सीख लो, तालीम हासिल करके उसके बाद में खुदा की इबादत करो। वरना खुदा की इबादत करने के लिए अगर तालीम नहीं हासिल करोगे तो गुमराह हो जाओ। एक ऐसे ही बगैर पढ़े लिखे आबिद साहब आए और वो खुदा की इबादत करते
बड़ा उनका शोहरा हो गया। वो कहते रोजाना मैं खुदा का अर्श देखता हूँ, खुदा का दीदार होता है दुनिया में। उनको मालूम क्या था? किसी आलिम साहब तक ये बात पहुंची, आला हज़रत ने इसको बयान फरमाया, अल-मलफूज में हुज़ूर मुफ्ती आज़म ने नकल फरमाया। कहते हैं कि रोजाना खुदा को मैं देखता हूँ। अब कोई आदमी जो अनपढ़ हो तो कहता है यार तो बहुत बड़ा पहुंचा हुआ, ये अल्लाह को देखता है। हालांकि उसको अकीदा नहीं मालूम है। अकीदा ये है कि अल्लाह का दीदार दुनिया में अपनी आंखों से किसी को नहीं हो सकता है। अगर कोई अनपढ़ अभी आ जाए कोई ऐसे बाबा तो सब लोग मान जाएंगे। मानेंगे नहीं मानेंगे? किस बुनियाद पर? इस बुनियाद पर कि इल्म नहीं है। हमारे इलाके में एक आदमी पहुंच गया था तो मोबाइल से गौसे आजम से बात करता था, और बहुत से लोग उसको भी चाहने वाले मिल जाते हैं। ऐसे लोग भी मौजूद हैं। कहते हैं हाँ है तो पहुंचा हुआ, ना जाने कौन सा नेटवर्क उसका था, यहाँ से वहां तक काम करता। मगर यहीं से बैठ करके कहता मैं अभी बात करके बताता हूँ, कोई मसला है। आज गंवार और अनपढ़ लोग गुमराह खुद भी है और दूसरों को गुमराह कर रहे हैं, जो कि उनको आखिरत की फिक्र नहीं है। उन्हें ख्याल नहीं है अपनी आक़िबत का, और आक़िबत का ख्याल कैसे होगा? इल्म होगा तभी तो फिक्र होगी। इसलिए कुरान ने कहा इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह का सबसे ज्यादा खौफ रखने वाले उलमा ही है। उलमा मतलब जो जानकार है, जो जितना ज्यादा जानेगा उतना ही डरेगा। बात समझे प्यारे? बहरहाल वो कहते हैं कि मुझे दुनिया ही में खुदा का दीदार होता है। एक आलिम साहब के पास आए, उनसे बयान किया तो कहा कि अरे वो जाहिल है, उसको क्या मालूम है, खुदा का दीदार दुनिया में तो हो नहीं सकता है। मगर समझदार था। कहा सुनो, इब्लीस के बारे में आया है कि रोजाना वो समंदर के ऊपर अपना तख्त बिछाता है और अपने सारे चेलों से बैठ करके अपनी उनकी बातें सुनता है कि किसको बहकाया, किसे कोरेक्स पिलाया, किसे टिकिया खिलवाई, किसको गुमराह किया, किसे डीजे में लेकर के गया, किसको नाच पार्टी में लेकर के गया। वो शैतान बैठ करके पूछता है। तो जो तुम देखते थे रोजाना वो शैतान का तख्त समंदर पर बिछता था, शैतान को आज तक तुमने खुदा समझा। वो समझदार था, इबादत गुजार था, मगर लड़ाई करने वाला झगड़ाऊ अड़ियल इंसान नहीं था। कहा आज तक मैं जिसको खुदा समझता रहा माज़अल्लाह वो तो शैतान था। तौबा किया, आलिम की बात पर एतमाद करते हुए उसकी इत्तबा किया और कहा कि अब आज से शैतान के वरगला में नहीं आएंगे, उलमा जो बताएंगे उसी की इत्तबा करेंगे। इसलिए जान दो, मेरे आका ने इरशाद फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन। ऐ लोगों सुनो, तुम पर मेरी सुन्नत भी लाजिम है और मेरे तमाम खुलफा की सुन्नत भी लाजिम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तमाम खुलफा की सुन्नत भी लाजिम है। इसलिए मेरे अजीज, मैं ही अकेला नहीं हूँ, ये मत समझिए कि मैं ही बोल लूँ, बहुत से लोग मौजूद हैं। मैंने खुतबा में पढ़ा था, अल्लाह के रसूल का इरशाद है तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिम, हर मुसलमान पर इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है। मेरी गुफ्तगू अधूरी हुई इधर की उधर। बहरहाल जो बातें मैंने बताई हैं आप ये नोट कर लें कि अपने बच्चे को पढ़ाएंगे। मुआशरे में जो लोग तबाहियाँ बर्बादियाँ फैलाते हैं, गुमराह करने की कोशिशें करते हैं किसी बुजुर्ग के नाम पर या किसी भी ऐसी शख्सियत की जो मुतबर्रक और मुअज़्ज़म है उसके हवाले से, तो सबसे पहले आप शरीयत मुस्तफ़ा सीखें कि मुस्तफ़ा की शरीयत की रोशनी में हमें अक़ीदत कैसे रखनी है। जैसे कि सहाबा ने सजदा करने के लिए नबी से कहा तो नबी ने फरमाया कि सजदा नहीं कर सकते हो, इसलिए कि सजदा सिर्फ खुदा को किया जाता है, मोहब्बत हर एक से की जाती है। इसलिए आप कुछ भी करने से पहले सबसे पहले इल्म हासिल करें, पढ़ें। आपके दरमियान उलमा है उनसे मसाइल सीखें, आपके दरमियान आइम्मा है उनसे पूछें। इल्म इसी के ज़रिए हासिल होता है। आला से पूछा गया कि हुजूर क्या इल्म पढ़ने ही से हासिल होता है? आपने फरमाया नहीं, इल्म अफ़वाह रिजाल से भी हासिल होता है। और अफ़वाह रिजाल का मतलब ये मत समझिए कि अफ़वाह ये फ़ौह का माना मुँह होता है, और मुँह सिंगुलर और प्लूरल आपने पढ़ा होगा इंग्लिश में। जैसे माउथ मुँह होता है, और इसी तरीके से आप
عربی میں جائیے تو فو کا معنی منہ ہوتا ہے, اس کی جمع پلورل جو آتی ہے وہ افواہ ہے. فرمایا آپ نے افواہ رجال سے بھی علم حاصل ہوتا ہے, یعنی اگر مدرسے میں پڑھ نہیں سکا ہے تو علماء کے منہ سے علم حاصل کر, ان کی زبان سے علم حاصل کر. تجھے پڑھنے کے لیے مدرسہ اگر میسر نہ ہو سکا ہے تو ان کی بارگاہ میں آ جا. مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں صحابہ آتے تھے, مدرسہ میں کبھی نہیں پڑھا, ان کے پاس جاتے تھے, حدیثیں پڑھ کر کے محدث بن گئے, قرآن پڑھ کر کے مفسر بن گئے. ان کے پاس آؤ, علم حاصل ہوگا, فتنہ فساد سے محفوظ رہو گے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں برائیوں سے محفوظ فرمائے. آج اس غوثیہ ضیاء الاسلام میں دستار کا جلسہ ہے, جو بچے دستار لینے والے مولا ان کو علم نافع عطا فرمائے. استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ, وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.